So listen, today's topic is a kind of revision, that is note making. Okay, some of you have doubts while making notes. You see, making notes is not that much complicated as you think. Normally all of you are making notes for physics, chemistry, biology, or any other subject. So where it becomes a problem while making a notes from a paragraph or a passage, it should create no hurdles while making a note. Only thing is that you must follow some basic principle. When you make a note, you actually choose various techniques, various methodologies. Sometimes you use graphs, sometimes charts, sometimes you just yes. Right. So what are the techniques? First thing is that it comes with a format. For your examination's sake at least, note making comes with a format. What is the format? The note that you are making out of a passage or a paragraph must have a title. Some students are forgetting to put a title above the note. I have seen in your last examination. You are forgetting to give a suitable title. So first and foremost thing is to give a suitable title above the note. And don't make the title lengthier. Better to keep it short, within 6-7 words maximum. Don't write the title in a sentence or so, unless it compels you to do. And another thing is that make the title appropriate, not just picking the first line or any word from the passage, because the title itself tells how much you have comprehended the passage. It is like a preamble of the constitution. जैसे प्रियम्बल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रूपरेख जो क्या है वो बता देता है. Likewise, your title, if you have given the title accurately, exactly, then it means that you have comprehended the passage correctly. Right? In the passage given in your examination, in the second PT, there is a topic which told about the possibility of life on Mars. Am I right? But some students have given title like fungi, algae and bacteria in Mars. Some have given anything else. So the topic should be very theme that covers the entire passage or most important part of the passage, right? That is possibility of life on Mars, right? And the title may not necessarily be words chosen from the passage itself. जरूरी नहीं कि possibility word मान लो नहीं था passage में, लेकिन तुमको देना है possibility of life on Mars. इसी तरह का sentences, the same kind of sentences, same kind of phrases, same kind of summarizing skill has to be used while writing your summary, right? So when we discuss on the format, the very first thing that comes to our mind is the title. And what is the title writing format? Normally, whenever we write a title, we don't write it in no talking place. We don't write it in capital letters, right? Do we write titles in capital letters? Titles in capital letters. Have you seen any title in your textbooks written in capital letters? So what is the title writing format? That is, except the conjunction and unimportant words, right, prepositions, the basic or building blocks of the sentences, the very vocabularies are written in capital letter and rest of the letters are in small letters. Right, so what should be a title? Like possibility P must be capital. Possibility of did not be capital. You know, possibility of life, right?
on numerator capital, on marks or on the marks, right? So this is how a title is written. You can underline possibility of like on marks. So this ends here. It will be seen if you haven't put a title, just take that half marks from your format section will be deducted. So that is very essential. After the title, what you have to do is that suppose this is your title, whatever it is, and this is your page, and this is your page margin. Title. Don't write anything here. Only suppose this is question number 3. Write it there, question number 3, or answer of question number 3. Now, as I have already told you in my previous lesson, previous classes, you need to make some headings or main points. You need to make some main points. So to write some main points, you have again you again need to use some format, some style, that is numerals or maybe that is alphabets. If you are using alphabets for main points, you can use A, B, C, D like this. This is one way. And then while writing the sub points, these are the main points. Then the sub points did not follow the same margin used by the main points. Just provide a space a little indent, maybe 1 or 2 inch. If you have written 1A here, you can choose 1, 2, 3 here in this format. 1, 2. Sometimes a sub point may have another sub point. In that case, choose another margin. Next margin for sub point there, you can write 2.1, 2.2. Right? 1. Suppose there is 1.1 and 1.2 and no other point. Okay. Then for this one, 1, 2, 3. To avoid this ambiguity of 1, 2, 3 and inconvenience faced while writing this point, some people use only numerals. And how to write only numerals? And if you are using only numerals, the person who is evaluating your copy can easily understand that you have understood the format at least. You have that advantage. Only numerals. How to write using only numerals? That is 1, main point 1, main point 2. Don't do this before writing. I am just giving some examples. It should come one by another. Suppose we have written 3 main points. 3 what? Main points. Main points, right? So after the main points, there should be some sub points. So for sub points, they will again use the same numeral format, but this time this is 1.1 for the first sub point. For the second sub point, this will be 1.2. So what is this? Sub point. Sub point. In so many points, there may be more than 2 sub points. In that case, 2.1, 2.2, 2.3, and then it may become 2.4, but don't write 2.6, 2.7, 2.8. That is again useless. Maximum 2.4. So these are all what? These are all sub points. Again, in main points, main point 3, you see that 3.1 has some sub point. Some sub point. So in that case, right here 3.1, 3.1. This is 3 main point, 3.1 sub point. Sub point is 3.1.1. So
चलिए यहाँ पर हम 3.1.2 this is soft right. So main point can be 3 or 4, maximum 5. Even though your passage has been divided into 6 or 7 small paragraphs, it is not mandatory for you to make 6 or 7 main points. Right? Combine the sense of the paragraph and make it smaller, or even you can mix up the ideas to show basic main points. कभी कभी कुछ पैसेज में ऊपर में एक नोट इन्फॉर्मेशन देता है, वही इन्फॉर्मेशन फिर 6 या 7 पॉइंट में उसको एलैबोरेट करता है, समझाता है. तो एक के लिए अलग है, 7 के लिए अलग, ऐसे नहीं करना है. उसको एक के साथ ले जाना है ऊपर, या ऊपर को नीचे ले सकते हो. ठीक है, यही तो नोट मेकिंग है. अगर कोई कहानी में ट्विस्ट दे दिया है तो ट्विस्ट के हिसाब से तुमको नोट नहीं बनाना है. तुमको समझते हुए जिससे तुम अच्छे समझोगे, एक फ्लो में रहना चाहिए. दैट शुड बी ए फ्लो, एक कंटिन्यूटी, एक कोहेरेंस should be there even while writing the note. Now this is the format, that is visible format. और इसी के लिए अगर ये सही है तो लगभग 1 नंबर मिल जाएगा only for format. अब देखते ही उनको लगना चाहिए कि आपने इसे लिखा है. और आपका पेज, सपोज ये इतना बड़ा पेज मिल भी गया है, तो ये 100 पॉइंट का लेंथ ये टच नहीं करना चाहिए बाउंड्री तक. ये 25-30% खाली दिखना चाहिए. If you are writing sentences that touches the boundary, the next boundary, then you haven't been able to make proper notes. ये यहाँ तक रहना चाहिए. ये 25-30% को टच मत करो. Sentences, make the sentences that much concise, smaller, that it is bound by 7 or 8 words. ऐसे नहीं कि 15 words, 20 words का एक मेन पॉइंट बना दिए. That's good type. And soft points, वो भी उसका लेंथ भी एक्सीड नहीं करना चाहिए. कभी कभी सॉफ्ट पॉइंट्स 2-3 वर्ड्स का होता है, और सॉफ्ट पॉइंट्स तो एग्जांपल वगैरह के लिए यूज करते हैं लोग. 1 वर्ड का भी हो सकता है. मान लो ये 7-8 वर्ड्स हो गया, तो ये 3-5 वर्ड का होगा. और ये क्या होता है, कभी 1-2 वर्ड का सॉफ्ट पॉइंट नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द पैसेज टाइम. राइट, ये नॉर्मल है. सो अब जब ये लिख रहे हो फॉर्मेट में और आपको सेंटेंसेस छोटा करने की जरूरत पड़ रहा है, तभी आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है. तभी जाके आपका सेंटेंसेस छोटा होगा, नहीं तो सेंटेंसेस छोटा नहीं होगा. दैट इज समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट आर्टिकल्स लाइक दी, ए, एंड, कंजक्शन, एंड. ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो या सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, ये बट, ये सब जरूरत नहीं है. जब तक ये मतलब सेंटेंस का मीनिंग को क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं करता है, यू कैन लीव दोज थिंग्स. ठीक है, ए, एन, बी, ई, बट, एंड, सो, ऑल्सो जरूरत नहीं है. तो फिर क्या करना है, व्हाट टू डू, उसको आराम से छोड़ो. और सेंस अगर दे रहा है वो चंक ऑफ वर्ड्स, तो उसको चूज करो. और कभी कभी sometimes some words are unnecessarily lengthier, some words are unnecessarily lengthier. So in that case, having some kind of definite pattern, some kind of particular ending, like there are so many words that end with CION, am I right? Education, sublimation, and so many. In that case, for TION, you can just choose T superscript N. Am I right? Superscript N. Or sometimes you can compact the word. You can compact the word by choosing some abbreviation, customized abbreviation. कुछ लोग पूरा मस्त. Okay. ठीक है. So sometimes you have to make a definite abbreviation for shortening of the same word. For example, for education,
you normally write what? EDN and its offices. Yeah. जगह है तो देख लो कहाँ पर है. So EDN for education. Some words end with ment, amusement, commitment. So in that case MNT may be used, right? So it is a skill how to shorten the word, but you should shorten the word in such a manner that phonetically, when someone tries to articulate, the same sound hits at his mind. ऐसे बनाओ कि तुम अगर सुंदरगढ़ का लिख दोगे तुम, तो ये कौन बोलेगा सुंदरगढ़ है? थोड़ा माइंड में हिट करेगा. यू कैनॉट राइट SUG, थोड़ा सेंस हिट करो. क्या लिख सकते हो? ये होता ही अलग बात है. मान लो जगत सिंहपुर, उसको बोलो क्या लिखना है? JSTP बना सकते हो, लेकिन फिर भी because you know जगत सिंहपुर is a known place for you, for a person who doesn't know जगत सिंहपुर और उसको ये JSTP बार लिख रहे हो. Suppose one is writing about the cyclone at जगत सिंहपुर and is writing JSTP again. जगत सिंहपुर कितना लंबा, तो शॉर्ट करना है आपको. JSTP को उसके लिए what you have to do, इसके नीचे when it ends, थर्ड पॉइंट के नीचे, मेरी जगह नहीं है ब्लैकबोर्ड, मैं साइड में यूज कर रहा हूँ, राइट? इसके लिए क्या करोगे तुम? एक बॉक्स बना दोगे. क्या बना दोगे? एंड दैट इज key to abbreviation. That is key to abbreviation, right? There at one JSTP means once. बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार वहां लिख दो तो यहाँ जितना मर्जी JSTP लिखो. समझ में आ रहा है? लेकिन listen, don't prefer to write the certain form or abbreviation in main points. Main points पे avoid करो unless ये universal abbreviation सब जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल USA लिखोगे, USSR लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. HIV लिखोगे, कोविड लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल एब्रिविएशन. अपना बनाया हुआ एब्रिविएशन कभी मेन पॉइंट पे मत लिखो. ये गलती किए थे कुछ लोग. क्या नहीं करना है? मेन पॉइंट में अपना बनाया हुआ एब्रिविएशन मत लिखो. मेन पॉइंट में हाँ यूनिवर्सल है तो चलेगा. UN, USA, इंडिया के बदले IND चलेगा. बट अपना बनाया हुआ एब्रिविएशन कहाँ यूज करना है? सब पॉइंट में यूज करना है, राइट? तो ये कितना होगा? कुछ लोगों ने इसमें 15 तक लिखा था. उतना भी सॉफ्ट मत करो कि उसको पढ़ना पड़े इसके बदले. नोट बना रहे हो कि तुम उसको मतलब उधर टास्क दे रहे हो. 3, 4, 5 दैट इज एनफ, राइट? मैक्सिमम कितना रखो? मैक्सिमम 5 तक बनाओ. मैक्सिमम 5 तक बनाओ. नहीं लिखना पड़ेगा. वो भी एक स्किल में दिखाया था कि तुम सर्टेन क्या किए हो उसमें. सर पता नहीं चलेगा सर्टेन से तो पहले लिखेगा, बॉक्स पे लिखेगा. बॉक्स दे विल बी डेफिनेटली चेकिंग बॉक्स. ये आपका फॉर्मेट पार्ट में आता है. नहीं हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही लिख रहे हैं? तो उससे सही करने से क्या होगा? ये बेसिक में कम है. JSTP का जगह सिंहपुर ये बस सही है. वो तो यूनिवर्सल का था. कौन सा? जगह सिंहपुर. जबरदस्ती लिखते ना तो कोई वर्ड शॉर्ट करता है. नहीं वो सब दिखाएगा. करना है लिसन, जबरदस्ती कर रहे. तो नॉर्मली किसके लिए एब्रिविएशन यूज करना है? जो वर्ड आइदर बहुत लंबा है, जो वर्ड बार आ रहा है पैराग्राफ में, तो उसके लिए यूज करना है. ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड के लिए एक वर्ड मिल गया तो उसको शॉर्ट कर दो, लिख दो वहां. एक वर्ड के लिए मत करो. वो वर्ड को अगर तुमको इसमें पॉइंट में 2-3 बार लिखने की जरूरत पड़ रहा है तभी लिखो. अगर मान लो ऐसे वर्ड नहीं है कि तो शॉर्ट करने की जरूरत पड़ रहा है, फिर भी 1-2 बना के लिखो, क्योंकि जो देखने वाला देखेगा कि वो बनाए हुए बॉक्स. क्योंकि ऐसे खाली भी नहीं छोड़ो उसको. दैट इज पार्ट ऑफ द फॉर्मेट.
कुछ नहीं है तो कुछ मैथमेटिकल साइन ही यूज करो, क्योंकि मैथमेटिकल साइन भी उसमें यूज कर सकते हो। व्हाट इज दैट? सिमिलर टू। ठीक है, अब इसमें हम मान लो कि वर्ड सिमिलर टू है, तो इसके लिए तुम ऐसे वर्ड लिख दो, ऐसे साइन लिख दो, कॉन्ग्रुएंट साइन भी यूज कर सकते हो कॉन्ग्रुएंस के लिए। सिमिलर टू लिखो, एक साइन की यूज करो कोई, या फिर समटाइम्स not same as, you can write not same as लिख दो, not equal to नहीं, not same as, clever करो, not same as। अगर मिली है जॉल लिखा तो मिली प्लस जॉल लिख सकते हैं, प्लस मिला दिखा माइनस कर देगा, वो है। ठीक है, फिर इसमें एप्लीकेशन जरूरी नहीं है इसको समझ में आता है, ये सब करेगा, राइट। और क्या लिख सकते हो? लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, मैथमेटिकली लार्जर देन, स्मॉलर देन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बना सकते हो। द ट्रेंड इज, मान लो कहां से लिखना है? ट्रेंड, दैट मींस इंक्रीजिंग। और there is another symbol, mathematical symbol that is widely used in literature. Note making हो ना, widely used. What is that? That is your ratio, जिसको कि इधर कॉलम कहते हैं, इस्टू, है कि नहीं? लिटरेचर में उसको कॉलम कहते हैं और मैथमेटिक्स में उसको इस्टू कहते हैं। तो है इस्टू में अगर लिखना है, कोई रेशियो दे रहे हो तो उसको इस्तेमाल करो इन द सेम रेशियो, और रेसिप्रोकली इसका मतलब समझा, रेसिप्रोकली। सर एक कॉलम पर नीचे कॉमा होता है, सेमीकोलन, यूज क्या करते हैं? सेमीकोलन यूज क्या करते हैं? ये जहाँ पर लॉन्ग पच के लिए जस्ट स्मॉलर देन पीरियड, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा कम हो और कॉमा से ज़्यादा हो उसके लिए। जैसे now suppose we are going to, अब पैसेज मेरे पास है नहीं, and suppose I am going to write about the tricolor, India's national flag, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? टाइटल इंडियन फ्लैग, India's tricolor है, India's national flag, राइट। अब मान लो पहला पैराग्राफ में या कुल मिलाकर पैराग्राफ में उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बारे में लिखा था, ये कब था, पहले कौन सा कलर था, पहले फिर कहाँ कभी अडॉप्ट किया गया, इस बारे में मान लो है इस पैराग्राफ में। तो इसके लिए मेन पॉइंट क्या चूज कर सकते हो तुम? बोलो, टेल मी व्हाट मेन पॉइंट्स शुड यू चूज? हिस्ट्री ऑफ नेशनल। ओके, अब नेशनल का कितना बार लिखोगे? ओनली हिस्ट्री पे चल जाएगा, ठीक है? फ्लैग का शॉर्ट फॉर्म क्या नहीं, इसमें कोई शॉर्टनिंग नहीं करना, इसमें कोई शॉर्टनिंग नहीं करना, ऐसे बना मैंने ऐसे, राइट? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखो या ओनली राइट। जैसे तो यहाँ पर क्या लिखना है? 1.1 में मान लो पहले उसके बीच में ये अशोक चक्र नहीं था, व्हील नहीं था, और क्या था? स्पिनिंग व्हील था। हेलो, यू आर नॉट लिसनिंग देयर। सपोज वहां पर ये अशोक का व्हील नहीं था, क्या था? स्पिनिंग व्हील था। तो उसमें क्या लिखना? 1.1 में मान लो ये कब फटा, पता नहीं मेरे को, एक्चुअली पता नहीं कि कब फटा, पर मेरे ख्याल से वही 1947 में ही हटाया गया है, जब इसको एडॉप्ट किया गया। नहीं देखो, उसमें लिखो earlier, ठीक है? earlier spinning wheel, ठीक है? अब in place of अशोका व्हील, अशोका चक्र, उसके लिए कोई मैथमेटिकल साइन यूज कर सकते हो? सर ऐसे गोला बना दो,
अब छोटा ही करना है, छोटा ही करना है। अब इसका अल्फा लगाओ, अल्फा डाल दो। अल्फा में इंटरेस्ट लिख देंगे। हो गया? लीगल है लीगल है तो एब्रिविएशन बना की ना, क्या है? इन प्लेस ऑफ हाई कर सकते हैं हाई अब व्हील दो बार आ गया तो व्हील के लिए इंसर्ट कर सकते हो। जब पढ़ रहा तभी समझ लिया ठीक है? नंबर 2 एडॉप्टेड इन। नॉर्मल लिखते सेंटेंस में क्या कहते हैं? एडॉप्टेड इन लिखते, अब मैं इन नहीं लिख रहा हूं। एडॉप्टेड बीटा बीटा लिखिए जुलाई 21 है। हेलो, जुलाई 21 क्या आता है? क्या बता आई वेरी पुअर जनरल। ठीक है? तो अगर मान लो हुआ था, हो गया एडॉप्टेड, राइट? इन में लिखिए भाई जो मैं बोल रहा हूँ इन लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम। छोटा करना है ना यार। मैं अभी बोल रहा था कि ये अननेसेसरी जो होता है, प्रीपोजिशंस होता है, ये आर्टिकल्स होता है, डिटरमिनर्स होता है, उसको नहीं लिखना है। ठीक है? बस पढ़ने लगा एडॉप्टेड 1947 जुलाई 21, राइट? और दूसरा में क्या होगा? दूसरा में क्या होगा? हेलो, कुछ है? नहीं, ये स्टिकर में कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है डिजाइन चेंज। डिजाइन पर कुछ है साउथ इंडिया का, कुछ आंध्रा पर उसका कुछ लोग ने। नेक्स्ट, लिसन नंबर 2। सपोज नेशनल फ्लैग का अभी उसमें कंपोजिशन के बारे में दिया है, उसका मेजरमेंट के बारे में दिया है, सेकंड कोई पैराग्राफ दिया है, तो उसमें क्या हो सकता है? डायमेंशन, साइज। अब दूसरा मेन पॉइंट में बना दे क्या? डायमेंशन में क्या लिखा है? 2.1। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग? इसको मालूम है? ब्रेथ इक्वल टू इतना, लेंथ इक्वल टू इतना। रेशियो नहीं पता है? अच्छा, लेंथ इंटू हाइट 3:2 होता है। हो गया, पॉइंट हो गया। हाँ फिर Yes, I have used brackets. के अंदर होगा I have used multiplication sign. I have used ratio sign. Right? हो गया? Number 2. 2.2. सर वो हिस्ट्री मार्जिन के अंदर लिखिए ना कोई बात नहीं। ये मैं गैप दिया बनाया। ये मार्जिन से आउटर मार्जिन का डिस्काउंट। उसके बाद में गैप दिया। पूरा तक समझ रहे हैं। जैसे now ट्राई कलर जब मार्जिन के अंदर फिर एच के नीचे मार्क अब यहाँ पर लिखो 2.2.1 ट्राई कलर और तीन कलर होता है ना, मेरे पास है ऐसा लिख रहे हो। डायमेंशन कैसे ट्राई कलर विजय एंड नेक्स्ट सैफ्रॉन। अब यहाँ इक्वल ये रेशियो साइन लिखे, कॉलम से एक टॉप लिख दिया। नेक्स्ट कर सकते हो सर ये वर्ड में कितना रहता है नहीं होता है मीडियम आप चीज लिखा मिडिल में मिड यस लिख लिए, दिक्कत कोई है? ये सब मैं जब लिख रहा हूँ अल्फा इन प्लेस ऑफ लिख दिया मैं। ठीक है, अब इस के लिए क्या लिखा मैं? रेशियो। ठीक है, या फिर यहाँ पर रेशियो लिख देते, यहाँ पर दूसरा कोई क्या क्या लिखा या फिर छोड़ दो, चैप्टर ऑन टॉप लिखने में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब थर्ड में आ जाओ। जगह नहीं
थर्ड में आ जाओ, ये कौन से टाइम में या कहाँ पर या उसको फहराने का रूल्स क्या है या रेस्पेक्ट करने का रूल्स क्या है। तो उसका तीसरा पॉइंट लिखो, रूल्स रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग, रूल्स रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग। अब मान लो 3.1 में लिखते हो, पहले एक रूल था कि रात को नहीं उड़ा सकते, अभी उड़ा सकते हो अगर लाइट जल रहा है तो, नहीं जल रहा तो नहीं अंधेरे में नहीं उड़ा सकते, इसका प्रोविजन है। दैट वाज एक्चुअली एन अमेंडमेंट डन फ्यू इयर्स अगो। इससे पहले रात को उड़ा ही नहीं सकते थे, अभी रात को उड़ा सकते हो बट कंडीशन है कि लाइट जलना चाहिए। तो इसमें देखो कैन बी ऑन फॉल एट In the presence of like वो तो पहले हो रहा था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। और क्या रखना है, ऑन फॉल, कैन बी ऑन फॉल एट, अब देखो 3.1.1 में लिखो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, नेशनल डेज, नेक्स्ट पॉइंट उसका नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग नाइट इफ वेल लीट, वही बात नहीं। अगर लाइट मिल रहा है तो रात को उड़ा सकते हो, ठीक है। एंड और क्या है, अब उसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट है कि कब कौन इस्तेमाल करें, कैन नॉट बी यूज्ड एज ड्रेस, कैन नॉट बी यूज्ड एज ड्रेस, गारमेंट्स, ड्रेस, आउटफिट्स, देखो कैन बी यूज्ड एज आउटफिट्स, ठीक है। जो दिया होगा मैसेज में, मैं बता नहीं सकता है, आजकल शायद परमिसिबल है कि आप कमर के ऊपर में यूज कर सकते हो, शायद कोई इवेंट है, अबव वेस्ट यू कैन यूज, बिलो वेस्ट नहीं यूज कर सकते। एंड कैन बी यूज्ड टू कवर मार्टर्स, सही, यूज टू कवर मार्टर्स। अब ये सब हो गया, आपका 3 पॉइंट्स में कवर हो गया, राइट। अब आते हैं उसके ऊपर, हमको क्या लिखना है, दिस पार्ट इज ओवर, एब्रिविएशन में जो यूज किए 3 4 5 लिख दिए, लास्ट में उसको समरी लिखना है। समरी में दोबारा से टाइटल देने की कोई जरूरत नहीं है, समरी में कोई टाइटल देने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी टाइटल, समरी दे भी दियो तो नंबर नहीं कटेगा, ओके। समरी, ये इसमें बहुत मिस्टेक किए हैं, 70% बच्चों ने मिस्टेक किया था लास्ट एग्जाम में। दैट इज while writing summary you are bound to be within 10% limit of given word limit। आपको अगर 80 वर्ड्स बोला है या 70 वर्ड्स बोला है, आपको एक्सपेक्ट करते हैं ओनली 10% डेबिट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट। ये नहीं है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, मन मारी 60 वर्ड लिखते हो, कभी 2 वर्ड लिखते हो, कभी 4 वर्ड, कैसे नहीं होता है। समरी में जो वर्ड लिमिट दिया है, यू हैव टू एडहियर टू दैट लिमिट। मान लो 80 वर्ड्स बोला है तो 10% 8 वर्ड कम हो सकता है, 8 वर्ड ज्यादा हो सकता है, दैट मींस अराउंड 70 to 90 उतना परमिसिबल। उससे ज्यादा लिखते हो तो नंबर कटेगा, चाहे आप कितना अच्छी लिख लो। कम लिखते हो तो भी नंबर कटेगा। दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू जट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेक अ रॉक बिफोर राइटिंग द फाइनल स्क्रिप्ट। रॉक पेज में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें नंबर फुल मिलता है अगर सही से लिख लो। अब वो क्या होगा, जिनका इंग्लिश सही है, दे हैव गुड स्किल ऑफ जॉइनिंग सेंटेंसेस, फ्रेजेस टुगेदर, वो लंबा सेंटेंस लिख लेते हैं। कभी कभी तो पूरा समरी एक सेंटेंस में भी आ जाता है, जिनका स्किल है जोड़ने का, कभी कभी पूरा एंटायर समरी एक सेंटेंस में भी लिख लेते हैं कुछ लोग, नहीं तो 2-3 सेंटेंस में होगा। और कुछ लोग इतना बुरा है उनका हालत कि वो क्या करते हैं, सीधा पैसेज से अंडरलाइन कर लेते हैं 3-4 लाइन यहाँ वहाँ से, और उसको उठा के डाल देते हैं। वो वहाँ पर 0 नंबर मिलता है, कुछ आधा नंबर भी नहीं मिलता है, बिकॉज उसमें समराइजिंग स्किल है ही नहीं। कुछ लोगों ने तो पूरा सीधा एक पैराग्राफ को छाप दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यू आर नॉट सपोज टू यूज द सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, जरूरत नहीं है। आपको लिखना क्या है, आपको क्या समझ आया, ये पैसेज पढ़ने का क्या समझ आया जिसको आप याद करना चाहते हैं या जो इम्पोर्टेंट है, that should be in your language, in your own language, that should be in your own language। अब मान लो दिए पैसेज दिया गया है, जैसे तो क्या लिखोगे,
विदाई हुए our national flag which is लगा दिया मैं जोड़ने के लिए, which is having 3 colors such as saffron, white and green from top to bottom, from top to bottom, was adopted in 1947 by an act of parliament, right? एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस, it was designed by such, it was initially designed by जो भी नाम है, designed by such who has given it a dimension and design of 3:2, right? अब दूसरा सेंटेंस कंप्लीट। तीसरा सेंटेंस क्या हो गया? It can be on fall on national days, comma, on government buildings and on special occasions. अब देख लेना, वहां पर गिन लेना कि कितना वर्ड हो गया। such as to cover a martyr, to celebrate national glory। और यहाँ पर अगर कहीं हाफ मास्ट का भी दिया हुआ है, हाफ मास्ट का होता है तो द फ्लैग इज कॉल्ड हाफ मास्ट, मतलब उसका खंबा का आधा पोल में लगाता है। व्हेन सो प्रोमिनेंट पर्सन डाइज, खत्म। अब वो हो गया कितना, ये पूरा मान लो पैसेज आपका 300 या 400 वर्ड्स में था, मैं जो बताया वो आपका 70-80 वर्ड्स में आ जाएगा। दैट्स ए समरी। तो समराइजिंग स्किल वही सीखना है। यस, आई डू एग्री दैट some passages are very difficult to मेक नोट्स एंड समराइज। कभी कभी होता है, लेकिन उस केसेस में समरी तो हो ही जाएगा। समरी तो तुमको क्या समझ में आया वो लिख दो, समरी जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने का क्या समझ में आया, समरी। नोट मेकिंग में दिक्कत हो सकता है जब वो पर्टिकुलर स्मॉल पैराग्राफ में डिवाइड करता है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन में आया था, ठीक है, 6-7 पैराग्राफ आया था, बट सेंस पे उसको भी लिखा सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, फंजाई एक बना दिया, आल्गी दूसरा बना दिया, बैक्टीरिया तीसरा बना दिया। ऐसे नहीं बनाना है। आपको जो समझ में आ रहा है उसको लिखना है। पहला वाला मेन पॉइंट में तुम क्या लिख सकते थे, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स दे दिए। पहला पॉइंट शुरू कर सकते थे एविडेंसेस दैट कंपेल टू थिंक। पहले एविडेंसेस दैट कंपेल टू थिंक क्या, 1, so microbes survive harsh climatic condition, what नहीं। दूसरा पॉइंट में सच है, या उसका पॉइंट में साइनोबैक्टीरिया, आल्गी, फंजी जो भी दिया दे दिए, राइट। उसका पॉइंट में 1.2 में दे दिए आइस कैप्स इन मार्स, ये एविडेंस है आइस कैप। उसके पॉइंट में देखो 2.1 में अंटार्कटिका हैज ट्रेसेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, पॉसिबिलिटी एविडेंसेस। अब दूसरा क्या फोर्सी करते हो, क्या पॉसिबिलिटी है वो अगर है तो जो भी लिख रहे हो, व्हाट एवर यू आर राइटिंग, दैट शुड यस कवर द बेसिक थीम और द बेसिक पर्पज ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ मैसेज, उसको कवर करना है, ना कि उसमें क्या दिया तो हम एक पैराग्राफ पेज को शॉर्ट करते हैं। इसलिए आपको थीमेटिकली और लिखा जाना चाहिए ताकि जब कोई पढ़े तो उसको समझ में आए। आपको पता कैसे चला कि आपने परफेक्ट नोट बनाया कि नहीं बनाया, हाउ टू नो। किसी ने वो पैसेज नहीं पढ़ा है, इट इज ए टॉचस्टोन मेथड। किसी ने वो पैसेज पढ़ा नहीं है, उसको तुम नोट पकड़ा दो और बोलो कि ये मैं क्या बार लिखा हूँ, किस चीज़ के बारे में लिखा हूँ, क्या इसके बारे में तुम कुछ बोल सकते हो। अगर वो बोल लिया आपका नोट देख के, दैट मीन्स यू हैव मेड ए परफेक्ट नोट। अगर वो नहीं बोल पाया, क्या समझ नहीं आ रहा है, देन इट्स वेस्ट, राइट। तो जरूर कोशिश करो इसके बारे में, बिना कोशिश के होगा नहीं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन छोड़ो मत कि मेरे से होगा नहीं बोल के, राइट। ओके, थैंक यू।